پٲٹھۍ پلگ آسان جیسے وہ ہے چھنا آسان یتھ منٛز أسۍ پلگ لاگان چھنا لاگان ایک ہمارے پاس جس طرح سے پلگ ہوتا ہے اس میں بھی 3 تاریں ہوتی ہیں اس میں پن ہوتی ہیں چھنا آسان پن لگے یہ گو پلگ کیا گو یتھ ونو أسۍ پلگ یتھ ونو ساکٹ یتھ کیا ونو ساکٹ کیا ونو ساکٹ آیا کت سمجھ پور پٲٹھۍ نا اوٚتام تورا فکر یُس اسہِ وہ پاور یِوان چھُ گھرس منٛز جو باہر سے پول سے بجلی آتی ہے ٹھیک ہے اس بجلی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بار کہ جب آپ کو فون چارج کرنا ہوتا ہے تو سو فون ات پٲٹھۍ لگے تو چارجر یا ات پٲٹھۍ لگے تو تتھ چھا فرق پیوان ہیٹرٕچ لنچ ات پٲٹھۍ لگاؤ یا ایسے لگاؤ کوئی فرق پڑتا ہے کنڈا چوری یا تو نہیں کرتے لیکن کنڈا چوری یہ لوگ کرتے دیکھے ہیں کبھی بجلی چور بھی ہوتا ہے نا کنڈ تراوان حالانکہ وہ سب حرام ہے مگر سو کنڈا چوری اس کران تم سے تارِ تھاوان نشان کہ ہرمس پہ کس تراو بنمس پہ کس تراو مش تراو مت اس پہ کوئی نشان نہیں ہوتا یہ جو ہمارے پاس چیز ہے یہ فی الحال اس کو بھول جاؤ یہ کیا ونو یہ مزہ ات کیا ونو پلگ مگر ات کس پن ات ونو 3 پن پلگ کیا ونو 3 پن پلگ یہ لکھو یہ لکھو یہ پہ یاد روزان یہ تھو لکھت یہ گھا پتہ پگہ اگر تھی پن کھانا چیز شروع کرو یہ گھا پتہ آسن یتھ کیا ونان چاہے اردو میں لکھو اس کو 3 پن پلگ بولتے ہیں ٹھیک ہے 3 پن پلگ ہاں 3 پنوں والا پلگ اب جو لائٹ یہ باہر سے آتی ہے نبر پہ بجلی کل میں نے بتایا تھا بجلی بنتی کیسے ہے میگنیٹ بنیا نا میں ترام تو میگنیٹ سسٹم سمجھایا نا میرا اس پر سے بنا انشاءاللہ میں وہ مشین بھی لاؤں گا آپ اس کو دیکھو گے ہاتھ سے گھما کر پاور کیسے بنتا ہے لکٹ ماڈل بھی وہاں تاکہ تم سے اس سے سمجھ میں آئے گا پورا ہمارے پاس 2 طرح کی بجلی آتی ہے ایک وہ بجلی جس بجلی کو ہم باہر سے ریسیو کرتے ہیں پکڑتے ہیں جو پول سے آتی ہے اس میں 2 تاریں ہوتی ہیں چنا آسا زتار یہ 2 تاریں جو ہوتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں لائن کیا سنا لائن دوسرے کو بولتے ہیں نیوٹرل آیا کت سمجھ چاہے تو اس پر لکھو لائن یہ تھا چلے گا اردو تھوڑا کمزور لائن اور نیوٹرل ٹھیک مگر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی پلس مائنس ہوتا ہے بجلی بنا میں رات دیکھو یہاں پہ سمجھو بجلی کا کام کیا ہے بجلی کیسے یہ جو لائٹ جلتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے اگر یہ ہمارا پلگ ہے یہ ساکٹ ہے ساکٹ میں ہم نے پلگ لگایا ٹھیک پلگ میں سے یہ اخ تار کہ ایکچولی 2 تار آسان ٹھیک زٕ تار مطلب بنان اتھے پٲٹھۍ اکھ یپٲرۍ اکھ لٔڑ تُلان بہٕ لگاوان یپٲرۍ ٹھیک بہٕ تہِ لاگہٕ اتھ لمپ کیا لاگس لمپ مےٚ لوگ اتھ ہولڈرس منٛز لوگ مےٚ لمپ کھوٚت یِتھ پٲٹھۍ اتھے پٲٹھۍ چھا بنان چھا بنان اتھے پٲٹھۍ چھا کیا بنان اب دیکھو اگر یپٲرۍ یہ پلس یہ مائنس چاہے بہ لنچ ات پہ لگا یہ چلنا توتہ چلنا اتھے تو یاد اس بجلی رکا کن جائے کہین یہ امس بڑ وت کیا ات پہ گئی تیز دورت کن وار وار تیز دورت یم سات یہ تیز دوران تیز دورنے وز شرارت کھسان یہ تھی گاڑی میں تیز دور مزہ یم سات پہ جامس میں پھسان پہ مزہ جا اصل آگو جام مزہ کہاں ونان تہ جام میں کیا ہوتا ہے غصہ ہی آتا ہے نا یہ گھان یہ پلس لکھ نا میں یہ دوران لکٹ نفر ان نفرن ونان الیکٹران دوران پکان یہ پکن بجلی ہز الیکٹران دورناون کیا الیکٹران دورناون یہ نفر اخ پکان یہ ساسن مز کرورن مز یہ پکان یپر یتھے یہ ووت نا اتنا سپرنگ بنائت سپرنگ بنائت ات گو ٹریفک جام ہول پکن بریک والا ہیکیا یہ ہول پکت گاڑی کتہ گاڑی ورک شاپ نفر برزل نا
ऐसे ही होता है ना, तो वो क्या करेगा, ब्रेक मारेगा और धीरे धीरे चलेगा, मगर उसको गुस्सा भी आएगा। उस गुस्से से ये स्प्रिंग लाल हो जाती है, क्या होती है, और वो इतनी लाल होती है कि उसमें से ज्यादा लाइट निकलती है। उसी लाइट का इस्तेमाल हम फिर करते हैं रोशनी की शक्ल में। अगर वो कम लाल हो गई तो उसका इस्तेमाल हम हीटर के तौर पे करते हैं, सुना करा। जब वो कम लाल होती है, सिर्फ लाल होती है, मगर लाल से ज्यादा जब उसमें से बहुत ज्यादा लाल होती है, उसमें से ज्यादा रोशनी निकलती है, अलग एक स्प्रिंग लगता है लैंप में, अलग तरह का स्प्रिंग लगता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। क्या सुना, फिलामेंट पता आपको। ये मज ये प्रकाश पावर सह ज्यादा गह दिवान, उसको फिलामेंट बोलते हैं। वो अलग एक स्प्रिंग होता है। यही बिजली जब हीटर में दौड़ती है उस स्प्रिंग के बीच बीच में से, तो इनको मोड़ करना है इन इलेक्ट्रॉन वाले आदमियों को, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो लाल होते हैं, और उस लाल होने की वजह से वो हीट उसमें से निकलती है। उस हीट का इस्तेमाल इंसान किसके लिए करता है, हलवा पकाने के लिए, कि नहीं? चाय भी तो बनाते हैं, है ना? कहता है समझ होता थोड़ा बिगड़े, मगर इसमें प्लस और माइनस नहीं रहता कंटिन्यू, ये बदलता रहता है। ये क्या रोजान बदला। ये करंट जो है, जो बाहर से आती है पोल से, उस करंट को एसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी। क्या इससे बना एसी करंट, बदला प्लस रोज माइनस बना, माइनस रोज कैस कालस मैंने बताया था, एक सेकंड में 1 सेकंड के अंदर कितनी बार, 50 to 60, 50 से 60 टाइम्स। तो वो जो पैमाना है जिसमें 50 से 60 बार हम नापते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसको पैमाना जो जिसमें नापते हैं उसके हर्ट्ज कहते हैं। 50 से 60 हर्ट्ज, उसमें लिखा भी होता है 50 to 60 Hz, ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये क्या, सर्कुलेट करना, चक्कर अदलता बदलता, ठीक है, अदलना और बदलना, ठीक। ये अदलता बदलता कितनी बार है, 50 से 60 बार, 1 सेकंड। तो जो हमारा बल्ब है वो 1 सेकंड में 50 से 60 बार बंद भी होता है, 50 से 60 बार चलता भी है। लेकिन हमारी आंख में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम उसको पहचान पाए, हम उसको देख नहीं पाते। कच्चा इमा समझ, 2-3 बार अगर होता तो हम समझते, 1 सेकंड में 2-3 बार, शेष फिर इन्हें समझ कहें। बात समझ आ रही है? अब इसमें अगर मैंने यहां पर इस तार को काटा, अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, यहां स्प्रिंग के बीच में से घूमे, फिर वापस आ गए, लेकिन मैंने रास्ता काट दिया, क्या अब बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे रखता हूं, जलेगा? नहीं। अगर मैं इसको वापस जोड़ता हूं, जलेगा? जी। तो ये जो जगह मैंने बनाई, जिस जगह में मैंने इख्तियार रखा कि मैं इस बल्ब को कभी बंद भी कर सकता हूं, कभी जला भी सकता हूं, ऑन भी कर सकता हूं। ऑन और ऑफ मैंने एक फंक्शन बनाई जिसमें मैं इसको ऑन भी कर सकता हूं, ऑफ भी कर सकता हूं। इस फंक्शन बनाने की चीज को, जिसमें मैं एक ही तार पे काम कर रहा हूं, 2 तारों पे नहीं, एक तार। तो बात समझना, हम एक ही तार पे काम कर रहे हैं, 2 तारों पे नहीं। एक ही तार को या काट रहे हैं या बंद कर रहे हैं। इस पे जो ये काटना और बंद करने का काम हम करते हैं, इसमें हम एक छोटी सी चीज लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। सोच भी इसको पढ़ सकते हो कि नहीं? कोई बोलेगा सर सोच लगाते हैं, उसमें स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्विच। अगर मैं सीन चीम लिखूंगा तो सच हो जाएगा, सर सच लगाएंगे, झूठ नहीं चलेगा, ठीक है? ये थोड़ा बिगड़े। अब ये स्विच होता कैसा है वो मैं दिखाऊंगा। एक ही तार पे हम जब स्विच लगाते हैं, इस तरह से स्विच लगता है एक ही तार पे, 2 साइड हमने जोड़ दिए, मगर एक ही तार, ये याद रखना है एक ही तार है। तो उसमें अंदर एक सिस्टम बना होता है, जब हम स्विच को दबाते हैं तो ये तारें आपस में कनेक्ट हो जाती है अंदर, ये एक ही तार कनेक्ट हो जाती है। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो एक तार कनेक्ट हो जाती है, वो मिलती है आपस में। जब हम स्विच को बंद करते हैं तो वो तारें दूर हो जाती है। मतलब ये स्विच ऐसे होता है, जब हमने ऑन का बटन दबाया तो ये ऐसे हो जाता है, ऑफ का बटन दबाया तो ऐसे हो जाता है।
बात समझ में आ गई? लेकिन कितनी तारों पे स्विच लगाना है? एक तार पर, सिर्फ एक तार पे स्विच लगेगा। स्विच तार आस्तम लगा या मतलब एक तार एक साइड मतलब अच्छी एक तार एक साइड बैक तार लगा बैक साइड तो मज बा स्विच से तार आसान स्विच से साइड आसान मगर अके तार हिंद साइड से लागे अके तार बिग तार हिंद की मिसाल के तौर पर मैं इस तरह भी दिखाऊंगा आपको एक सर्किट बना के। अगर हमारे पास ये प्लग है, बाहर से दो तारें आ रही हैं, ये एक तार मैंने लगाई, इस पे मैंने बल्ब लगाया, फिर आगे गया, फिर मैंने दूसरा बल्ब लगाया, फिर आगे गया, फिर मैंने यहां से दो तारें इधर चढ़ाई, फिर इधर आ गया, यहां मैंने ये लगाया, यहां से दूसरी तार निकाली, ये मैंने ऐसे लगाया, ठीक। यहां पे मैंने फिर एक स्विच लगाया, कौन चला गया? स्विच, हाँ स्विच चला गया, बाहर कौन गया? क्यों, क्या हो गया? क्लास है, क्लास तो फोन हो जाए ना, वेस्ट टाइम। अच्छा अब देखो यह पावर चला, यहां मैंने क्या किया, यहां मैं इसको ऑफ रख रहा हूं, इसको मैंने बंद कर दिया। बात समझिए, ये तत्पुर में ऑन, बताओ कौन कौन लंप चलेगा? ये लंप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कौन कौन चलेगा? कोई क्या है? स्विच बैक, कहाँ पे स्विच? यहाँ पे ये आवाज समझ, यहां से जो दो तारें निकलती हैं यपर दोरेनाइम इलेक्ट्रॉन पकाशिम यपर पकिम बे यपर वतिम यतत अतेल वत अतत को मगर अतत गए वक्त बात वो चलना है लम वहां चला वो क्या करो इसको यतत इसी क्या करो ऑन करो अद वतिम यपर अद वोत यत इम गसन वापस वातन यत मस तिलिश कताया समझ तेल गए सर्किट पूरे तेल क्या गए सर्किट और वो चलना है लम बस चलन त्रेनवे चलना वो बना अब ब्या प्लग यतत अत द्राय ज तार यतनस लगो अस अख लंप समझो असल पटी वैकेनस ये मतलब पावर हाँ एक पावर स्विच ना वोल अगर वो स्विच खाल ये स्विच कोर में ऑन स्विच क्या कोर में ऑन और ये तो थोम बंद ये थोम बंद वंस चलना लम ऑन इज साइड एक चलेगा क्योंकि इसमें जो ये तार यहाँ से आ रही है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दौड़ रहे हैं और यहाँ भी दौड़ रहे हैं। यहाँ तो रास्ता बंद हो गया लेकिन यहाँ से रास्ता खुला है, यहाँ से आ गए तो यहाँ ये वाला लंप जो है उसमें बराबर ये दौड़ पाए अंदर गए और चले, ये वाला लंप चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। अब सवाल तो जो स्विच समझ में आ गया, लेकिन अब सवाल एक है ए क्या है। हमारे पास जो एक सुई होती है, आपने ट्रांसफार्मर पे देखा होगा, एक सुई ट्रांसफार्मर पे ऐसे काम उस पे ए लिखा होता है, फिर ऐसे बना होता है और फिर यहाँ लिखा होता है 1 3 6 9 12 या ऐसे, या लिखा होता है 130 160 190 210 ऐसे लिखा होता है। उस पे एक सुई काम करती है, वोल्टेज दिखाती है हमारा वोल्टेज कितना है। देखा है, देखा है ट्रांसफार्मर हर कोई ट्रांसफार्मर लगते आसान बड़ी से आसान
स्क्वायर बनाइए तथ्य एक पे V होता है, V वाला नहीं, A जिस पे होगा A होगा, उस पे आपको देखना है। इसको एमीटर बोलते हैं, ये वोल्टेज दिखाती है, ठीक है। क्या दिखाता है? वोल्टेज। आपके पास कितने वोल्ट का पावर आ गया, बताया समझ। ये आपको A नहीं, सॉरी, इसको V बोलते हैं, इसको पे V लिखा होगा, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या एमीटर दूसरी चीज है, वो करंट दिखाती है। वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। आज पर वी ऐसा है, ठीक है। यह होता है कोता वोल्टेज और, क्योंकि हमें हर चीज पे लिखा होता है ये कितने वोल्टेज पे चलेगा। आया का समझ। ये जो ये अदलने बदलने वाली पावर है, यह अदलता बदलता है, इसमें भी अदलता बदलता है, जिसमें प्लस और माइनस का कोई इम्तियाज, कोई तमीज नहीं रहती। इस करंट को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट या एसी करंट। इस बिजली को क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं इसको, या अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट बोलते हैं इसको, ठीक। ये लिखना है तो इम्तिहान पता था, लिखिए इस पर बोली हो ना, अल्टरनेट मजबूत इंजीनियर थे। तोरा उत्तम आवाज समझिए, इसके आगे इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। उत्तम तोरा फिक्र, प्लग क्या होता है, सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे बनता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे दौड़ते हैं, और एसी करंट क्या होती है, ये आवाज समझ। और इंशाल्लाह कल। अब चलो अपने अपने क्लास में ये पूरा लिखो, ये पूरा लिखो पहले, फिर बाद में।